Hello students, welcome to Real Academy. My name is Rajesh Masuti and I am faculty of mathematics associated with Real Academy for last 20 years. Today we are going to deal with a very important and interesting topic of trigonometric function of 11th standard. Now there will be a question that we have started trigonometric function previously in 9th and 10th standard. Then what are going to see which is different than what we have seen earlier in trigonometric function? See, I am saying again, what are we going to see which is different than what we have already seen in trigonometric function in the earlier standards? Let us see trigonometric function with a different approach. Now, why I am saying different approach? Because if I am not wrong, you all have seen that whenever we say trigonometric function, it is mainly applied in a right angled triangle. When we started trigonometry in 9th standard, we started by saying that trigonometry is mainly applied in a right angled triangle. So this is a right angled triangle. Now, when I say right angled triangle, I will also say that since there is a right angled triangle considered, it causes a few limitations in trigonometric function. मेरे कहने का मतलब यह है कि राइट एंगल्ड ट्रायंगल होने की वजह से आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सारे एंगल्स के लिए या सारे एस्पेक्ट में कवर नहीं होता. इट कैन नॉट बी अप्लाइड फॉर एवरी एंगल विच इज नोन टू अस. कैसे? सो यू कैन स्टार्ट कमेंटिंग इन द कमेंट बॉक्स दैट इफ आई से दैट इट इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, what is the maximum measurement of angle which we can see? What is the maximum measure of an angle in a right angle triangle? You can answer the things in the comment box. I hope you already know that in right angle triangle, the maximum value of an angle, maximum measure of an angle is 90 degrees. If it is of measure 90 degrees, more than 90 degree का एंगल है ही नहीं, तो हमने जो लोअर स्टैंडर्ड्स में पढ़ा है ऑब्ट्यूज एंगल्स, इन द प्रीवियस चैप्टर वी हैव स्टडीड स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, ऑल दीज एंगल्स, कंप्लीट एंगल, ये सारे एंगल्स अगर एग्जिस्ट होते हैं और राइट एंगल ट्रायंगल में 90 से ऊपर अगर एंगल है ही नहीं, तो व्हाट अबाउट द एंगल्स विच आर मोर देन 90 डिग्री, वेदर वी कैन अप्लाई ट्रिग्नोमेट्री इन इट और नॉट? फॉर द एंगल्स ऑफ मेजर मोर देन 90 डिग्री, whether trigonometry is applicable or not, it cannot be answered if it is used in a right angled triangle. Moreover, if you remember in our 9th standard, 10th standard, you have drawn a value table जिसमें आप 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के जो स्टैंडर्ड एंगल्स हैं उनके लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के वैल्यूज लिखते हो. Like if you remember, what is sin 0? It is 0. What is cos 0? It is 1. What is cos 90? It is 0. And so on. बहुत सारे values हमने किए. Now again there is a question. अगर हम 0 डिग्री या 90 डिग्री का लिखते हैं, you can comment this in the comment box, कि just think, if it is a right angle triangle and if I say that there is an angle of 0 degree in the right angle triangle, what do you think? Is it possible to have an angle of 0 degree in a right angle triangle? What is the thing? If I say that the angle is 90 degree, it is right angle triangle. But if I say angle is 0 degree, can we get a triangle? The answer is no. जैसे ही आप एंगल 0 डिग्री बना लोगे तो आपका ट्राइंगल बनेगा ही नहीं. आपका ट्राइंगल बनेगा ही नहीं. Because if I make this acute angle 0, the two sides will coincide with each other. ट्राइंगल बनेगा कैसे? But still, using right angle triangle, when we wrote that value table, हमने 0 डिग्री के लिए वैल्यूज लिखे थे. sin 0 is 0, cos 0 is 1, tan 0 is 0. बाकी वैल्यूज भी आपने लिखे थे. तो 0 डिग्री अगर है ही नहीं तो फिर कैसे लिखा गया? We don't have explanation for that. Also, if I say cos 90, I know that cos 90 is adjacent side upon the hypotenuse. Now here in this diagram, if I consider this as my 90 degree, I know that the opposite side is hypotenuse. There is no question about it.
but which side will be taken as adjacent side? ये भी इसके लिए adjacent है और ये भी इसके लिए adjacent है. तो आपने adjacent side upon hypotenuse में किस साइड को adjacent side लेना है? I don't know. At the same time, अगर कोई साइड ले भी लेते हो तो अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया that maximum angle is 90 degree. वैसे ही the maximum length is hypotenuse. Hypotenuse cannot be equal to the other two sides. If I say that this is the hypotenuse and these are the adjacent sides, I definitely know that the length are not equal. If two different lengths, उनका अगर हम रेशियो लेते हैं तो वो जीरो कैसे हो सकता है? बिकॉज हमने टेबल में लिखा है cos 90 is 0. अब इन सब बातों को सोचोगे तो you do not have any proper explanation given for sin 0 degree and cos 90 degree. This is the second limitation. एक और limitation यहां पे आएगा because in the first chapter we saw that in the case of angles considered in terms of rotation, if you consider angle rotating in anti-clockwise direction, clock के opposite direction में अगर angle rotate होता है तो it is considered as positive angle. But अगर clockwise direction में आप rotation करते हो then in that case जो angle बनेगा वो बनेगा एक negative angle. So अगर नेगेटिव एंगल्स एग्जिस्ट होते हैं तो आई नो दैट इन अ राइट एंगल ट्राइंगल योर एंगल्स कैन नॉट बी नेगेटिव. अगर एंगल्स नेगेटिव नहीं है राइट एंगल ट्राइंगल में तो आप ट्रिग्नोमेट्री कैसे अप्लाई करोगे? अगेन अ क्वेश्चन मार्क. सो इन शॉर्ट, यूजिंग ए राइट एंगल ट्राइंगल अगर हम ट्रिग्नोमेट्री की स्टडी करने चाहेंगे तो वी हैव दिस थ्री मेजर प्रॉब्लम्स. वन इज फॉर एंगल हैविंग मेजर मोर देन 90 डिग्री वी कैनॉट अप्लाई ट्रिग्नोमेट्री. For angle which is 0 degree or 90 degree, we cannot exactly explain why cos 0 is 1, why sin 0 is 0, why cos 90 is 1. इनका explanation हम नहीं दे सकते. At the same time, in a right angle triangle, negative angles exist नहीं होते तो उनके लिए trigonometry apply होगा या नहीं होगा, we can't say. In short, अगर ये सारी चीजें ध्यान में आती है तो we want some solution फॉर दी ट्रिग्नोमेट्री सो दैट ये सारे प्रॉब्लम्स हमारे सॉल्व हो जाए. कैसे ढूंढेंगे हम सॉल्यूशंस? बिफोर दैट, फ्रॉम चैप्टर नंबर 1 जो हमने रिसेंटली कंप्लीट किया है, वी नीड टू रिमेंबर दिस इंपॉर्टेंट थिंग्स बिकॉज हम जब ट्रिग्नोमेट्री हायर एंगल्स के लिए करने जाएंगे द एंगल्स हैज टू बी मेजर्ड इन डिग्रीज एंड रेडियंस. इन डिग्रीज एंड रेडियंस दोनों आपको मेजरमेंट मालूम होना चाहिए. So for that we convert the angles from degree to radian, from radian to degree in our chapter number 1. And this is how it is done. If you want to convert an angle from degree to radian, you multiply the given degree measure by pi by 180, that gets converted to radians. Similarly, if an angle is in the radians, to convert that into degrees, we multiply it by 180 by pi so that it gets converted into degrees. You can comment this in comment box based on both the relation. Direct relation between radian degree क्या आएगा? What is the measurement of 180 degree in radians? What is the measurement of 180 degree in the radians? आप कमेंट में कमेंट डेफिनेटली कर सकते हो. 180 डिग्री मतलब आपका प्रोट्रैक्टर जो होता है, सेमी सर्कल जो होता है, उसको रेडियन में कैसे लिखेंगे, उसका मेजरमेंट रेडियन में कितना होगा. आई होप यू ऑलरेडी हैव कमेंटेड दिस. वी नो दैट पाई रेडियंस इज नथिंग बट 180 डिग्रीज. सो वी शुड नो, वी मस्ट नो दिस रिलेशन फ्रॉम आवर फर्स्ट चैप्टर जो हमने कंप्लीट किया हुआ है. सो based on these limitations taken into consideration, I will go for the approach, new approach for the trigonometric function. But फिर से एक बार मैं ऐसे बोलना जरूरी समझूंगा that मैं ऐसे बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं that whatever we have seen in our lower standards, it is completely wrong. It is correct, but it has some limitations. अब उन limitations को overcome करते हुए अगर मुझे trigonometry फिर से एक बार दोबारा से पढ़ना हो तो कैसे पढ़ सकते हैं? तो for that I say that instead of trigonometry, applying trigonometry in a right angle triangle, we will say that trigonometry will start from a Cartesian system. We will consider that in a Cartesian system. You can see this. This is called as rectangular coordinate system या Cartesian system. कैसे बनता है? तो you all know this, that there is an x-axis, there is a y-axis, they intersect.
that intersecting point is origin. हम क्या करने वाले, हम यहां पर एक पॉइंट कंसीडर करेंगे. We will consider a point P x, y which is at a distance of r from the origin. कैसे बनेगा? You can see this. P is considered, it is x, y, its distance from the origin is r. Once I do this, आप यहां पर P you can take it anywhere. हमने फिलहाल उसको एक फर्स्ट क्वाड्रेंट में कंसीडर किया हुआ है. इट कैन बी एनीवेयर. ओके, एनीवेयर इन द एंटायर कार्टेशियन सिस्टम. फिलहाल के लिए हमने उसको फर्स्ट क्वाड्रेंट में कंसीडर किया हुआ है. इट ऑल्सो इज गोइंग टू कॉज सम चेंजेस, ध्यान में रखना. आगे हम क्या करेंगे, तो वी विल ड्रॉ ए परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट P ऑन द एक्स एक्सिस. वी विल ड्रॉ ए परपेंडिकुलर from point P on the x axis. When I draw this perpendicular, we will get something like this. आप देख सकते हो अब हम आ गए राइट एंगल ट्राइंगल में. So directly right angle triangle consider नहीं किया. Instead of that, I considered a point in the Cartesian system and then I converted that into a right angle triangle. So अभी भी हम right angle triangle ही कर रहे हैं, but approach थोड़ा change किया. Starting with a point in the Cartesian system, then we talk about a right angle triangle. अब थोड़ा आगे चलते हैं. If I say this PM is the perpendicular on x axis, it means it is distance of the point from x axis. Similarly, OM या P से लेके Y तक का distance, they will be same. हमने Cartesian system या rectangular coordinate system जब भी पढ़ा है, तो हमने ऐसे कहा है कि distance of the point from the x axis is always its y coordinate. And distance of the point from y-axis is always its x-coordinate. Taking this into consideration, length of PM, it is distance from x-axis, will be y-coordinate. Therefore, length of PM will be y. PM will be y. Similarly, length of OM, it is distance from y-axis, will be x. तो ये हो गया OM is equal to x. So thus, in your right angle triangle जो हमने बनाया था, we have all the lengths ready now. ट्रिग्नोमेट्री के लिए लगने वाले तीनों साइड्स जिन्हें हमने प्रीवियसली हाइपोटेनस, एडजेसेंट साइड, अपोजिट साइड ऐसे बताया था, अब वो साइड्स मैं बता रहा हूं इन टर्म्स ऑफ r, x एंड y, वेयर r is the radius, r is the distance of the point from the origin, whereas x and y they are the distances of the point from the x axis and y axis. तो अब इन्हें यूज करते हुए हम ट्रिग्नोमेट्री को दोबारा से करेंगे. वो कैसे किया जा सकता है, तो सी दिस सेम डायग्राम, एवरीथिंग इज सेम. एक एडिशनल पार्ट मैंने ऐसे कर दिया दैट द एंगल मेड बाय द रेडियस वी कंसीडर्ड विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, आई कंसीडर्ड दैट एज थीटा. चैप्टर 1 में हमने ये किया था. एंगल्स स्टार्टिंग फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस आर कॉल्ड एज एंगल्स इन स्टैंडर्ड पोजीशन. इसका मतलब हम जब राइट एंगल ट्राइंगल कहते थे 9th और 10th स्टैंडर्ड में, हम किसी भी एक एंगल को थीटा मान सकते थे बिकॉज एनी एक्यूट एंगल इज टेकन एज थीटा, हम ऐसे बोलते थे. वेयर एज व्हेन आई डू दिस हियर, आई ऑलवेज कंसीडर द एंगल मेड बाय द रेडियस विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, आई विल टेक इट एज थीटा. यानी ये एंगल हम थीटा नहीं कंसीडर करेंगे. सो दैट इज इंपॉर्टेंट. अब इन्हें कंसीडर करते हुए द अपोजिट साइड हियर इज y, द एडजेसेंट साइड हियर इज x and hypotenuse is definitely r. So अब ये राइट एंगल ट्राइंगल में हमें r, x, y मिल चुके हैं जो आपके एक्चुअली अपोजिट साइड, एडजेसेंट साइड, हाइपोटेनस है. सो इससे होगा क्या, इन द राइट एंगल ट्राइंगल वेयर आई हैव एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, आई कैन गो फॉर द रेशियोज नाउ. व्हाट इज sin theta? इट इज अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस. तो अपोजिट साइड इज y, हाइपोटेनस इज r, सो इट इज y अपॉन r. सो अब इसके आगे जब भी मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की बात करूंगा, तो I will not say opposite side upon hypotenuse for sin theta. I will say sin theta is y upon r. In the same way, cos theta क्या होगा, तो cos theta is adjacent side upon hypotenuse, that will be x upon r. It is x upon r. Cos theta adjacent side upon the hypotenuse, it is x upon r. Similarly, tan theta will be opposite side upon the adjacent side, which is y upon x. I definitely remember that इसके पहले लोअर स्टैंडर्ड्स में हमने जब रेशियोज लिखे थे तो साइड्स के टर्म्स में हम लिखते थे, इस बार हम उनको कोऑर्डिनेट्स के टर्म में लिख रहे. दिस इज द चेंज. At the same time, I hope you can comment this in the comment box that you know the reciprocals of sin theta, cos theta, tan theta.
तो अगर साइन थीटा y अपॉन r है तो व्हाट विल बी कोसेक थीटा? रेसिप्रोकल ऑफ साइन, इट मीन्स इट विल बी डेफिनेटली r अपॉन y. सिमिलरली अगर cos थीटा x अपॉन r है तो सेक थीटा क्या होना चाहिए? तो इट इज रेसिप्रोकल r अपॉन x. tan थीटा अगर y अपॉन x है तो cot थीटा विल बी x upon y. I can see that the comments which you have given and the ratios which we are getting are the same. So इस तरह से हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बनते हैं. अब यहां पे सोचने वाली बात है कि जो हमने चेंज किया है इंस्टेड ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल स्टार्टिंग विद अ पॉइंट इन द कार्टेशियन सिस्टम, इससे हमारे रेशियो में कुछ बदलाव हुआ क्या? नो. मैंने पहले भी आपको बताया था कि वी आर नॉट गोइंग टू चेंज एनीथिंग. Only the thing is we will change my approach so that the limitations which we discussed will be covered. अब देखो इस डायग्राम को अगर हम सामने रेफरेंस में रखते हैं तो वो तीनों लिमिटेशंस हमारे कवर हो जाते हैं. फॉर एग्जांपल, फर्स्ट लिमिटेशन which we discussed was more than 90 डिग्री का एंगल अगर आया तो ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई होगा या नहीं होगा. Now see this. In this case when we are considering the angle theta, it is considered in terms of rotation from the positive x-axis. So this rotation when starts from positive x-axis can reach the y-axis at 90 degree. But यहाँ पे ये stop नहीं होगा. It can rotate further. It can rotate further for any measure. तो 90 के आगे 180, 270, 360, 450, 540 कंटिन्यू हो सकता है. कितना चाहिए उतना मेजर हो सकता है. So the rotation solves my first problem, that angle of any measure can be considered. More than 90 कितना भी चलेगा. First problem solved. Second problem we discussed was what about 0 degree and 90 degree, because in right angle triangle 0 degree तो exist भी नहीं होता. But here again that rotation helps me in getting both those problems and their solutions. कैसे? 0 डिग्री जब आप रोटेशन स्टार्ट कर रहे हो एंड रोटेशन बिना किए आप वहीं पे रुक गए, यू स्टार्टेड रोटेशन एंड विदाउट एनी रोटेशन यू स्टॉप एट द सेम पोजीशन, द एंगल ऑब्टेन्ड इज 0 डिग्री. मतलब इस बार आपका एग्जिस्टेंस ऑफ 0 डिग्री मिल गया. इन द सेम वे व्हेन आई रोटेट एंड आई रीच पॉजिटिव वाई एक्सिस आई विल गेट 90 डिग्री. यानी 0 90 दोनों एग्जिस्ट होते हैं. इनफैक्ट हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था 0, 90, 180, 270, 360 ये सारे क्वाड्रेंटल एंगल्स हैं जो एक्सिस पे एग्जिस्ट करते हैं. इट मींस आई हैव दिस सॉल्यूशन फॉर ऑल सच क्वाड्रेंटल एंगल्स आल्सो. सो जो एक्सप्लेन नहीं कर सकते थे राइट एंगल ट्रायंगल में, वो अब हम कार्टेशियन सिस्टम में एक्सप्लेन डेफिनेटली कर सकते हैं. सेकेंड प्रॉब्लम सॉल्व्ड. थर्ड प्रॉब्लम वाज what about if an angle is negative, whether trigonometry is applicable or not? Answer is again yes. यहां पर उसका भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलेगा and again the answer is the solution is the rotation. Instead of rotating in the anti-clockwise, if I rotate in clockwise direction, the angles obtained will be my negative angles. And definitely since negative angles exist in the Cartesian system, I can say that I have the problems third also solved. यानी इस तरह से एक चेंज करने से instead of starting with a right angle triangle directly, if I start with the Cartesian system and then I go for trigonometry, तो मेरे वो तीनों प्रॉब्लम्स जिसे हमने डिस्कस किया था वो सॉल्व हो चुके. तो अगर ये सॉल्व हो गया है तो जो पहले हमने कुछ फॉर्मूले किए थे उसमें कुछ बदलाव आएंगे क्या? तो आंसर इज नो, नथिंग इज गोइंग टू चेंज. फॉर एग्जांपल अगर हम इंटर रिलेशंस की बात करते हैं यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ये रेशियोज हमने अभी कंप्लीट किए. व्हेन आई से इंटर रिलेशंस कैसे बन सकते हैं? सी दिस, आई नो दैट sin theta cosec theta they are reciprocals of each other. Cos theta sec theta they are reciprocals of each other. Tan theta and cot theta they are reciprocals of each other. I hope you remember in our lower standards, based on the reciprocal properties of these ratios, हमने कुछ interrelation लिखे थे. If you can remember those relations, just comment them in the comment box. आपने sin और cosec का relation लिखा था, आपने tan और cot का relation लिखा था, आपने cos और sec का relation लिखा था. In fact, using that relation of ratios, आपने tan theta को sin और cos के फॉर्म में भी लिखा था. I hope you remember that. You can comment those in the comment box.
अगर मुझे रिलेशन लिखना हो तो मेरे रिलेशन कुछ इस तरह से बनते हैं. See this, sin theta cosec theta are reciprocals. It means sin will be 1 by cosec, because हम जब reciprocal की बात करते हैं, reciprocal of 5 is 1 by 5, reciprocal of minus 3 is 1 minus 1 by 3, reciprocal of 2 by 3 is 3 by 2. आप क्या करते हो, अपसाइड डाउन. सेम यहां पे हमने किया, sin and cosec are reciprocal. It means I can express sin as 1 by cosec, cosec as 1 by sin, and hence sin theta cosec theta का प्रोडक्ट होगा 1. Always keep this in mind, product of reciprocals is always 1. अगर नेगेटिव वैल्यूज है तभी प्रोडक्ट 1 ही आता है. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई हैव नंबर -3, then reciprocal will be -1 by 3. When you multiply them, minus minus will become plus, 3 gets cancelled, you again get the value as +1. So product of reciprocals is always 1. ये याद रहे. Okay, so you can write this in the comment box that product of reciprocals is always 1. एक रिवीजन हो जाएगा. अब यहां पे बोला क्या गया, साइन एंड कोसेक आर रेसिप्रोकल, तो ये रिलेशन एग्जिस्ट होता है. वैसे ही कॉस एंड सेक आर ऑल्सो रेसिप्रोकल, तो कॉस इज 1 by sec, sec is 1 by cos, तो प्रोडक्ट विल बी अगेन 1. Similarly, tan and cot are reciprocals, तो tan is 1 by cot, cot is 1 by tan, and tan theta into cot theta is 1. तीनों लगभग सेम टाइप के रिलेशंस हैं, बिकॉज दे ऑल आर रेसिप्रोकल्स. बट इनके अलावा एक और रिलेशन आपने लिखा था जो इस तरह से कुछ बनता है, दैट व्हेन यू डिवाइड साइन एंड कॉस, दिस r and r gets cancelled, you get y by x, which is nothing but tan. In short, when I divide sin and cos, the value will be tan. Therefore, tan theta is sin theta upon cos theta. Taking reciprocals on the other side, you will get tan का reciprocal is cot and sin upon cos का reciprocal is cos upon sin. And this is how you write the interrelations. अगर आप इसको as single formula count करोगे तो they are 11 formulae. But अगर मुझे पूछोगे तो they are not 11 formulae, they are 4 relations. They are 4 relations. Sin and cosec are reciprocals, cos and sec are reciprocals, tan and cot are reciprocals, tan is sin by cos. बस, that's all. 4 relations. So ये बात मुझे ध्यान में आ गई that using the trigonometry in Cartesian system, I am not going to change my any of the formula which I saw in my previous standards. तो क्वेश्चन यहां पे ये आता है, फिर चेंज क्या होने वाला है, क्यों हम ट्रिग्नोमेट्री अलग कर रहे हैं, और अगर अलग कर रहे हैं तो उससे बदलाव क्या होगा. What are those changes? For understanding those changes, मैं फिर से एक बार उसी डायग्राम में आता हूं जो हमने पहले बनाया था. उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी ये रेशियोज. डायग्राम फिलहाल इग्नोर कर दो. What I see is in this ratios, the ratios are made of r, x and y, जिसमें r is the distance of the point from the origin. फिर आप कोई भी पॉइंट कहीं पे भी ले लो, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, that distance is going to remain the positive always. हमारा पॉइंट किस क्वाड्रेंट में है इस पर r का वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव होना डिपेंड नहीं करता. सो इट इज ऑलवेज पॉजिटिव. बट एक्स वाई जो वैल्यूज है, दे आर द कोऑर्डिनेट्स, एंड आई नो दैट एज आई शिफ्ट माई पॉइंट टू द डिफरेंट क्वाड्रेंट्स, my coordinates are definitely going to change in terms of signs. Yes, signs बदलेंगे. अगर मेरे साइंस बदलने वाले हैं तो उससे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कुछ फर्क आएगा क्या, तो डेफिनेटली यस आएगा. कैसे, कौन से, वो हमें देखने. तो I'll just mention it here that all the trigonometric functions, they depend on the coordinates x and y, not r. r is going to be always positive. बदलने वाले कौन है, x and y, तो they depend on the coordinates x and y. कैसे डिपेंड करते हैं? Let us talk about the first quadrant. I know that in first quadrant x and y both are positive. ये डायग्राम हमने बनाया था वो सेम है. अब इसमें मैंने कुछ चीजें ऐड की, लाइक सी हियर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ. ये तो मालूम है ना आपको. दिस थिंग्स आर कॉल्ड एज, दिस पार्ट्स आर कॉल्ड एज क्वाड्रेंट्स. वो मैंने ऐड किया, बाकी कुछ नहीं किया. तो डायग्राम हम फिलहाल नहीं देखेंगे तो भी फर्क नहीं पड़ेगा. What is needed is, in first quadrant I know that x, y both are positive. x पॉजिटिव है, y पॉजिटिव है, r as we already said वो भी पॉजिटिव है.
तो x पॉजिटिव, r पॉजिटिव, y पॉजिटिव अगर सब पॉजिटिव है तो जो रेशियोज हमने बनाए हैं पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव, पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव, पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव, वो भी सब कुछ पॉजिटिव ही आना चाहिए। एंड देयरफॉर वी कंक्लूड दैट ऑल फंक्शंस आर पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। मैंने ये डायग्राम में भी लिख दिया, ऑल पॉजिटिव इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। सो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कुछ बदलाव नहीं हुआ, डेफिनेटली नहीं होना चाहिए। इफ यू रिमेंबर इन योर लोअर स्टैंडर्ड्स, आपने जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के वैल्यू लिखे हैं, यू नेवर कंसीडर्ड द माइनस वैल्यूज फॉर द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। द रीजन इज, हमने ट्रिग्नोमेट्री राइट एंगल ट्राइंगल में पढ़ा था, जिस राइट एंगल ट्राइंगल में एंगल 0 और 90 के बीच में ही होगा। अगर वो 0 और 90 के बीच में ही है, इट मींस इट इज इन विच क्वाड्रेंट? इट इज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड हेंस इट हैज टू बी ऑलवेज पॉजिटिव। तो देखो जो हमने किया है, दो इट इज न्यू, इट इज नॉट गोइंग टू चेंज एनीथिंग फ्रॉम द लोअर स्टैंडर्ड्स। ओनली द थिंग इज, जो प्रॉब्लम्स हमें नजर आई थी उन सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन हमें मिलते जा रहा है। ओके, ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हुई। व्हाट अबाउट सेकंड क्वाड्रेंट? हम जब सेकंड क्वाड्रेंट की बात करते हैं तो इन सेकंड क्वाड्रेंट आई नो दैट x इज नेगेटिव एंड y इज पॉजिटिव। x इज नेगेटिव एंड y इज पॉजिटिव। कोई भी पॉइंट ले लो, पूरे सेकंड क्वाड्रेंट में x कोऑर्डिनेट नेगेटिव होता है और y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होता है। इसका मतलब यह हुआ कि इन सारे रेशियोज में जहां जहां पे x कोऑर्डिनेट यूज हो रहा है वो हम नेगेटिव कंसीडर करेंगे। इट मींस y इज पॉजिटिव, r इज पॉजिटिव, साइन थीटा विल बी पॉजिटिव, उसमें फर्क नहीं आएगा। cos में x इज नेगेटिव, r इज पॉजिटिव, माइनस अपॉन प्लस विल बी माइनस, डेफिनेटली ये माइनस होना चाहिए। tan थीटा में y इज पॉजिटिव, x इज नेगेटिव, यानी ये भी नेगेटिव होगा। इट मींस मुझे साइन पॉजिटिव मिलता है, cos और tan नेगेटिव मिलते हैं। अगर साइन पॉजिटिव है तो कोसेक भी पॉजिटिव होगा बिकॉज दे आर रेसिप्रोकल्स। Whereas cos and tan अगर नेगेटिव है तो sec and cot को भी नेगेटिव होना चाहिए। एंड वी कंक्लूड दैट sin and cosec आर पॉजिटिव, रेस्ट आर नेगेटिव। सो वे से मैंने यहां पे भी लिख दिया, sin and cosec आर पॉजिटिव, sin and cosec आर पॉजिटिव। थोड़ा और आगे चलते हैं। मैंने देख लिया कि क्वाड्रेंट बदलने पे कोऑर्डिनेट्स के साइन बदलते हैं, कोऑर्डिनेट्स के साइन बदलने पे रेशियोज के साइन में फर्क आता है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में हम जब जाएंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में बोथ x साइन y आर नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में p माइनस x माइनस y हो जाएगा। इट मींस जहां पे y है वहां पे भी हम लिखेंगे माइनस, जहां पे x है वहां पे भी हम लिखेंगे माइनस, लेकिन r में कोई चेंज होने वाला नहीं है। जस्ट कमेंट इट इन द कमेंट बॉक्स, क्यों चेंज नहीं होने वाला r में? because yes, I am expecting the comments, because r is the distance of the point from the origin and that distance is always positive. So x भी नेगेटिव है, y भी नेगेटिव है, लेकिन r पॉजिटिव है। therefore तो नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव विल बी नेगेटिव, नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव विल बी नेगेटिव, negative upon negative that has to be positive. Yes, and therefore in third quadrant tan and cot are positive, rest all values are negative. हमने ये सेम यहां पे भी लिख दिया, tan and cot are positive. अब हम चलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो इन फोर्थ क्वाड्रेंट व्हाट हैपेंस टू द कोऑर्डिनेट्स? कमेंट कीजिए x और y कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट अगर है, फोर्थ क्वाड्रेंट अगर है तो इट रेफर्स टू द पॉजिटिव x एक्सिस, नेगेटिव y एक्सिस। इट मींस इन फोर्थ क्वाड्रेंट आई नो दैट x इज पॉजिटिव, y इज नेगेटिव। तो जहां पे x है वहां हम प्लस लेंगे, जहां y है वहां हम माइनस लेंगे, लेकिन r में हमेशा ही प्लस ही लेना होता है। सो दिस इज माइनस अपॉन प्लस विच इज माइनस, दिस इज प्लस अपॉन प्लस विच इज प्लस, दिस इज minus upon plus which is minus. It means in the fourth quadrant I am getting cos positive, sec positive, बाकी सारे आएंगे negative. And therefore we mention it here that cos and sec are positive, rest values are negative. So इस तरह से हम जब भी quadrant को बदल रहे हैं तो हमारे accordingly signs of the trigonometric ratios बदल रहे हैं। अब ये पूरा पार्ट जो है ना, ये इतना सब कुछ जो मैंने बताया, इसको याद रखने के लिए एक टेबल आपको याद रखना होगा। एंड फॉर दैट वी मेंशन दैट एज
द टेबल ऑफ साइंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। क्या क्या याद रखना होगा? तो हमने देखा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल आर पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में टैन पॉजिटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव। जस्ट ड्रॉ द टेबल एंड मेंशन ऑल दीज थिंग्स इन द टेबुलर फॉर्म। तो वो इस तरह से बनेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। इन फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल आर पॉजिटिव, इन सेकेंड क्वाड्रेंट साइन इज पॉजिटिव, कॉस टैन आर नेगेटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में टैन इज पॉजिटिव, साइन कॉस आर नेगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस इज पॉजिटिव, साइन एंड टैन आर नेगेटिव। सो अगर हम लिखेंगे इसको इस तरह से तो हम ये लिख सकते हैं दैट ऑल आर पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, साइन इज पॉजिटिव इन सेकेंड क्वाड्रेंट, टैन इज पॉजिटिव इन थर्ड क्वाड्रेंट, कॉस इज पॉजिटिव इन फोर्थ क्वाड्रेंट। आप अगर नोट कर रहे हो यहां पे तो मैंने इन सारे वर्ड्स के पहले लेटर्स को अंडरलाइन किया है, बोल्ड भी किया हुआ है, इंडिकेटिंग दैट ये जो चीज है जब तक हम इनको हैबिचुअल नहीं होते, जब तक इनकी हमें आदत नहीं पड़ती कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा रेशो पॉजिटिव है, कौन सा रेशो नेगेटिव है, हम इन चीजों को याद रखने के लिए इन फर्स्ट अल्फाबेट्स, फर्स्ट लेटर्स को यूज करके कुछ फ्रेजेस बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल ASTC आर माय लेटर्स, तो एड शुगर टू कॉफी याद रख सकते हो। एड मीन्स ऑल, शुगर मीन्स साइन, टू मीन्स टैन एंड कॉफी मीन्स कॉस। हम और भी कुछ फ्रेजेस बना सकते हैं, लाइक हियर आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। ऑफ कोर्स आप सब स्कूल खत्म कर चुके हो, अब आप कॉलेज स्टूडेंट बन गए हो, तो आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, आफ्टर ऑल स्कूल, साइन, टू टैन, कॉलेज, कॉस, ये भी याद रख सकते हो। ऑल साइंस टीचर्स आर क्रेजी, प्लीज डोंट अटर दिस फ्रेज इन टर्म्स ऑफ इन फ्रंट ऑफ साइंस टीचर्स। थोड़ा डांटेंगे आपको, मुझे भी डांटेंगे, लेकिन ऑल साइंस टीचर्स आर क्रेजी में ऑल आर पॉजिटिव, साइंस, साइन इज पॉजिटिव, टीचर्स, टैन इज पॉजिटिव, क्रेजी, कॉस इज पॉजिटिव, ये भी आप याद रख सकते हो। ऑल सिल्वर टी कप्स, ऑल आर पॉजिटिव, सिल्वर, साइन इज पॉजिटिव, टी, टैन इज पॉजिटिव, कप्स, कॉस इज पॉजिटिव। So this is a very interesting thing to remember which ratio is positive in which quadrant and it is negative in which quadrant. एक और इंटरेस्टिंग बात यहां पे आती है, वो तो मैं बताऊंगा ही बताऊंगा, बट ऐसे बहुत सारे इंटरेस्टिंग चीजें हैं मैथ्स में जो आप जानोगे तो आपको अच्छा लगेगा. You will start liking mathematics. For that you need to subscribe the channel. बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, बिकॉज नए नए वीडियोस का जो अपडेशन होगा, नोटिफिकेशन होगा, वो भी आएगा. ऑल्सो लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो. मैं वो इंटरेस्टिंग चीज बता रहा था कि एवरी रेशियो जो हम यहां पे देखते हैं, आई फाइंड दैट एवरी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इज पॉजिटिव इन 2 quadrants and it is negative in 2 quadrants. For example, अगर हम साइन की बात करते, देखो it is positive in first and second, negative in third and fourth. अगर हम cos की बात करते, first and fourth में it is positive and second and third it is negative. tan अगर हम कंसिडर करेंगे तो first and third में it is positive and second and fourth quadrant में it is negative. So this is an interesting fact of mathematics. Rather, since we are starting applying trigonometry in a Cartesian system, हम इसके आगे जब ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ना शुरू करेंगे तो और भी ट्रिग्नोमेट्री मजेदार बनते जाता है, और भी ट्रिग्नोमेट्री इंटरेस्टिंग बनते जाएगा. एंड फॉर अंडरस्टैंडिंग, फॉर गेटिंग सच वीडियोस, आपको ये चैनल सब्सक्राइब करना होगा. सो इन आवर टुडे सेशन व्हाट वी सॉ इज ट्रिग्नोमेट्री राइट एंगल ट्रायंगल में नहीं, हम कार्टेशियन सिस्टम में अप्लाई करना शुरू करते हैं, सो दैट जो प्रॉब्लम्स हमें नजर आई थी लोअर स्टैंडर्ड्स के ट्रिग्नोमेट्री से, उन सारे प्रॉब्लम्स का एक कॉमन सॉल्यूशन हमने फाइंड किया, दैट ट्रिग्नोमेट्री विल बी एप्लीकेबल इन कार्टेशियन सिस्टम. जैसे ही वो मैंने अप्लाई करना शुरू किया तो पहली बात मैंने आपके नजर में लाके दिखाई, दैट दो वी आर चेंजिंग समथिंग इन ट्रिग्नोमेट्री, जो पहले हमने फॉर्मूले किए थे, लाइक इंटर रिलेशंस की हमने बात की थी, they will not change.
बट स्टिल देर आर अ फ्यू चेंजेस, जैसे कि हमने ये देखा कि ट्रिग्नोमेट्री के जो रेशियोज होते हैं वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, वो नेगेटिव भी हो सकते हैं, एंड दैट पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज दे डिपेंड ऑन द पॉइंट, the position of the point, they depend on the position of the point in which quadrant it lies. At the same time, आप अगर एंगल के टर्म्स में बात करोगे तो एंगल जिस क्वाड्रेंट में स्टॉप होगा उस क्वाड्रेंट के बेसिस पे आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के साइंस मिलेंगे. सो सिमिलर टू दिस वी हैव मेनी चेंजेस इन ट्रिग्नोमेट्री, बट एज आई सेड दो चेंजेस आर वेरी इंटरेस्टिंग. रैदर जैसे जैसे ट्रिग्नोमेट्री आगे चलता जाएगा वैसे वैसे ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ने में मजा आएगा. बिफोर आई एंड द सेशन, एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको यहां पे बताने वाला हूं. ध्यान रखना कि जैसे जैसे ट्रिग्नोमेट्री में एंगल्स आप बढ़ा रहे हो, स्टडिंग द एंगल्स इन डिग्रीज से भी ज्यादा स्टडिंग द एंगल्स इन रेडियंस विल बी मोर हेल्पफुल. सो दैट्स व्हाई हमने फर्स्ट चैप्टर में एंगल्स को डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना सीखा. रैदर आप जब कैलकुलस पढ़ोगे मैथमेटिक्स में तो आप ये पढ़ते हो ऐसे दैट एंगल्स आर मेजर्ड इन रेडियंस नॉट इन डिग्रीज. वहां पे तो एंगल्स आपको रेडियन में ही लिखने होते हैं. ट्रिग्नोमेट्री में आप दोनों लिख सकते हो, बट रेडियन मेजर लिखना इज मोर प्रेफर्ड सो दैट आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के वैल्यूज को इजीली कर सकते हो. सो लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो, एंड सिमिलर वीडियोस को जानने के लिए, नोटिफाई करने के लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना होगा. एंड we will be coming up with the more interesting facts, more interesting things in the mathematics in our next videos. Till then, have a nice time. Thank you very much.